Hello students, today we are going to study chapter number 11, that is human eye and the colorful world. Now student, in our body there is 5 sensory organ and वो 5 sensory organ का नाम है eye, nose, tongue, ear and skin. अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेल में डिस्क्राइब करना हो थ्रू योर नोज, फाइन, तो आप सिर्फ एक ही परसेप्शन यूज कर सकते हो, स्मेल. You can smell and tell the thing about that particular object, fine, according to the smell. अगर आपको tongue use करके उस particular object को describe करना हो, you can speak only about taste. And if you want to describe that object through your ear, using your ear, then you can perceive or describe that object only through sound. जो sound सुनाई देगा उसके through ही उसको particularly आप बताओगे. Speaking about skin, when you will touch and feel whatever about that object, आप उतना ही बता सकते हो, फाइन. मतलब उसका पूरा कंप्लीट डिटेल आप नहीं दे सकते हो by using this 4 sensory organ. But if you see the object through your eyes, आंखों देखी जो ऑब्जेक्ट होती है उसका डिस्क्रिप्शन हम बहुत अच्छे से दे पाते हैं. That's why compared to all the sensory organ, our eye is the most significant one. Fine. Now I am beginning with the structure of the eye and later I will explain you the power of accommodation of the eye and last part होगा human eye में the defects related to the eye. Now speaking about human eye student, human eye is made up of 3 important layers. And before that, what is the shape of human eye? The shape of human eye is spherical shape. And what is the diameter of the human eye? It is approximately 2.3 centimeter. Fine. So this is about introduction, spherical shape and 2.3 centimeter in diameter. Now human eye is made up of, human eye मतलब कि eyeball, हमारा एक eyeball होता है and that eyeball is inside a protective layer called as conjunctiva. तो human हमारे eye का protective layer क्या है? Conjunctiva. Conjunctiva. Fine. Now student, why you must have heard about this disease called as conjunctivitis. मतलब ये layer का जो swelling होता है तो उसको conjunctivitis बोलते हैं. This is a viral infection which most of the people suffer from. Fine. Now eye is made up of eyeball. Human eyeball is made up of 3 layers. The outermost layer is called as sclera, fine, or it is called as sclerotic layer. The middle layer is called as choroid and the innermost layer is called as retina. ये 3 लेयर है. अब हमारे आंखों के जितने भी पार्ट्स है ये 3 लेयर से बनते हैं. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है स्टूडेंट, each layer is making which part of the eye. Very simple and the structure is done. Fine. Later I will show you the picture and explain you again. Now let's jot down the important points related to it. Fine. Sclera forms the cornea of the eye. Choroid first extend in the front of the eye to form ciliary body or ciliary muscles. तो पहले वो extend होता है in front of the eye to form ciliary muscles from both the side, from right side and left side, both the side, fine. And this ciliary muscle further extend to form the iris of the eye. Iris के अंदर ही pigment होता है which determine the color of our eye. Fine. Like we have 4 natural color. Black color eye is the dominant one, blue, then green, then yellow. Fine. These are the 4 natural one. Okay. Now speaking about retina, retina consists of 2 major cells which are called as visionary cells, that is rods and cones. ये कोई पार्ट नहीं है बट ये हमारे आंखों के important cells है. Why these cells are important? Because these cells helpful in colorful vision. Now rods are responsible for black and white vision and cones are responsible for colorful vision. Now why it is responsible for only black and white vision? Because it got a pigment called as rhodopsin and cone got a pigment called as iodopsin. Because of this pigment we get respective vision. Fine. Clear? Now we will see the picture of human eye and will study further.
So let's see all the three layers first in the eyes. Fine. पहला लेयर कौन सा था स्टूडेंट? आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा. सो अब इस डायग्राम में देखते हैं स्क्लेरा कहाँ पे, लेबलिंग है ही नहीं, तो लेट मी डू द लेबलिंग फॉर स्क्लेरा. द आउटर मोस्ट लेयर इज स्क्लेरा और इट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोटिक लेयर. सेकेंड लेयर इट्स अ कोरोइड लेयर, तो कोरोइड लेयर भी नेक्स्ट लेयर कोरोइड लेयर. And the third layer is retina. So innermost they have labeled it as retina. तो तीनों layer हमारे दिख गए. outermost layer, this is choroid layer and this is retina. Fine. Now sclera यहाँ से start होता है, but in the front it bulges. It bulges to form cornea. तो एक ही पार्ट वो बनाता है, तो ये हो गया cornea. फाइन, जैसे मैंने लिस्ट में आपको बताया था. नेक्स्ट स्पीकिंग अबाउट कोरोइड. कोरोइड के मैं तीन पार्ट्स बताए थे. पहले वो बनाता है सिलियरी बॉडी, देन इट फॉर्म्स द आइरिस एंड फाइनली बिटवीन द आइरिस द गैप क्रिएटेड कॉल्ड एज प्यूपिल. सो लेट्स सी वो तीनों पार्ट कहाँ पे दिखाई देते हैं. तो यहाँ से ये कोरोइड है, मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए. यहाँ से ये कोरोइड स्टार्ट हुआ है. फाइन, यू कैन सी इस तरफ से भी कोरोइड मूव हो रहा है. फाइन, पहले उसने बनाया है यहाँ पे सील, नीचे की तरफ आपको येलोइश अगर जो दिख रहा होगा दैट इज सीलियरी बॉडी. फाइन, एंड सीलियरी बॉडी फर्दर एक्सटेंड, दिस इज सीलियरी बॉडी पार्ट एंड इट फर्दर एक्सटेंड टू फॉर्म आइरिस. अब आइरिस को मैं ब्लैक कलर से शेड कर रही हूँ. दिस इज आइरिस. ओके, ब्लैक कलर शेडेड पार्ट इज आइरिस, रेड कलर शेडेड पार्ट इज सीलियरी मसल. फाइन, एंड आइरिस के बीच में गैप है विच आई विल ड्रॉ विथ यूजिंग ग्रीन कलर टू डिस्टिंग्विश इट. ये बीच में गैप बनता है विच इज कॉल्ड एज प्यूपिल. Pupil is not any structure, it's just a gap between two iris. Fine, and pupil का main function क्या होता है? To help the rays to pass through. Function सबके हम बाद में देखेंगे, पहले structure समझ लेते हैं. तो कोरोइड के सारे पार्ट समझ में आ गए आपको. अब स्टूडेंट आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे, यहाँ पे below this मतलब लेंस को भी होल्ड करके कुछ येलोइश पार्ट भी है. That is also extension of ciliary muscle. वो साइड एक्सटेंशन है सीलियरी मसल का. फाइन, तो वो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं, इसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट. तो कोरोइड एक्चुअली फ्रंट में आके दो ब्रांचेस बनाता है, एक अपर की तरफ जाता है सीलियरी मसल और एक नीचे की तरफ से निकलता है, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट. तो ब्लू कलर का शेडेड सस्पेंसरी लिगामेंट है. मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, सस्पेंसरी लिगामेंट. सस्पेंसरी लिगामेंट का काम होता है टू होल्ड द लेंस एट इट्स पोजिशन. एंड रेड कलर का जो है वो सीलियरी मसल से जो यहाँ पे लिखा हुआ है. फाइन, नेक्स्ट सीलियरी मसल्स फर्दर एक्सटेंड ऑन द अबव पार्ट फॉर्मिंग द आइरिस. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. फाइन, आइरिस के दो फंक्शन, ओके फंक्शन मैं आपको बाद में बता देती हूँ. नाउ स्पीकिंग अबाउट रेटिना, द इनर मोस्ट लेयर, आई विल डिस्टिंग्विश इट बाय यूजिंग ग्रीन कलर अगेन. द इनर मोस्ट लेयर जो ब्लू कलर के जैसे ब्लू कलर का पूरा प्रिंट दिया हुआ है. फाइन, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. ओके, एंड यहाँ पे ऐसे है वो. तो अंदर जो मैंने ग्रीन कलर में इनर मोस्ट लेयर बताया दैट इज रेटिना. फाइन, ओके, नाउ दिस कंप्लीट ब्लूइश पार्ट इज रेटिना. दिस इज शोन इन 2D फॉर्म एंड यू हैव टू इमेजिन लाइक अ आई बॉल. फाइन, आई बॉल एक कंजक्टिवा के अंदर एंड उसका इनर मोस्ट लेयर 3D के हिसाब से आपको इमेजिन करना है. यहाँ पे हमें 2D पिक्चर दिख रहा है. फाइन, अंडरस्टूड. नाउ there are two important spots in eye. One is called as yellow spot, which is not mentioned over here, and one is called as black spot. यहाँ पे होता है black spot and यहाँ पे होता है yellow spot, जो मैंने green color से अभी बनाया है. Fine. What is the function of black spot means blind spot. This is blind spot. What is the function of blind spot? Blind spot contain optic nerve. And what is the function of yellow spot? It contains maximum cones. तो ब्राइट विजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? येलो स्पॉट से. एंड येलो स्पॉट कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रेटिना. कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रेटिना. अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब स्ट्रक्चर कहाँ पे था? रेटिना के ऊपर था. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे आई के अंदर 2 चेंबर्स है विच आर कॉल्ड एज एक्वस चेंबर एंड ह्यूमर चेंबर. एंड इनके अंदर फ्लूइड है विच आर कॉल्ड एज एक्वा ह्यूमर एंड aqueous chamber and vitreous chamber, and the fluid present inside them is called as aqueous humor. You can see over here they have given, and the second one, the fluid present is called as vitreous humor.
फाइन. सो दिस आर द नेम ऑफ द फ्लूइड. कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग है जो मैं आपको बता दे रही हूँ. फाइन. तो अगेन आई एम रिपीटिंग द होल स्ट्रक्चर वंस अगेन. एंड क्रिस्टलाइन लेंस जो मेंशन किया हुआ है वो किसके बीच में है? सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच में है. आई मीन इट इज होल्डेड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना. रेटिना एंड कॉर्निया के बीच में है. फाइन. प्यूपिल क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज प्यूपिल इज अ गैप ऑफ पासिंग द लाइट रेज. नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द होल थिंग. आई मीन रिपीटिंग और रिवाइजिंग द होल थिंग. Human eye is made up of 3 layers, sclera, choroid and retina. हर एक लेयर क्या बनाता है और उसका फंक्शन क्या है वही आपको याद रखना है. फाइन. स्क्लेरा बनाता है कॉर्निया, कोरॉइड बनाते हैं 4 पार्ट, सीलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट, आइरिस एंड प्यूपिल गेट फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट, retina does not form any particular structure, but yes, it has a 2 important cells called as rods and cones. Rods are responsible for black and white vision and cones are responsible for bright vision. Apart from that, retina got 2 special spots called as yellow spots and black spot. Fine. Yellow spot पे क्या होता है? This is yellow spot which is also called as fovea ovalis. Fine. This is called as yellow spot. येलो स्पॉट के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? कोन्स. एंड ब्लाइंड स्पॉट के अंदर क्या है? ऑप्टिक नर्व. फाइन. एंड द क्रिस्टलाइन लेंस दैट इज बाइकॉन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना. फाइन. नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. कॉर्निया का फंक्शन क्या है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है एंड उसका फंक्शन होता है इट इज द फर्स्ट लेयर थ्रू विच लाइट रेज एंटर. फाइन. ये होता है कॉर्निया का फंक्शन. सेकेंड फंक्शन सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स का. सीलियरी मसल्स हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ लेंस. फाइन. आइरिस का फंक्शन हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ द प्यूपिल फॉर द एंट्री ऑफ द लाइट रे. हमें कम लाइट रे चाहिए तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देगा. अगर हमें ज्यादा लाइट चाहिए कि अंदर जाना चाहिए टू व्यू द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, तब वो प्यूपिल को वाइड कर देगा सो दैट मैक्सिमम लाइट passes through it and it happens in dark. वो मैं बाद में बता देती हूँ आपको. फाइन. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या प्रेजेंट है? लेंस. लेंस के थ्रू लाइट रेज पास होता है एंड विच एडजस्ट द लाइट रेज अकॉर्डिंगली टू व्यू द ऑब्जेक्ट क्लियरली. Apart from that, eye also consists of 2 chambers, aqueous chamber and vitreous chamber. इनके अंदर fluid होता है aqueous humor and vitreous humor. अब इस fluid का main function होता है to maintain the shape of the eye. I said main function, इसका मतलब इसका और भी function होता है. फाइन. बट आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्लूइड हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई. इतना पूरा गोल गोल आई बॉल कैसे बने हुए रहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड दैट इज एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर. फाइन. अपार्ट फ्रॉम, अच्छा इट इज मेंशन ओवर हियर विट्रियस ह्यूमर. ओके. फाइन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्लाइंड स्पॉट का फंक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व विच पास द मैसेज थ्रू द टू द आई फॉर द विजन. फाइन. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स एंड इट्स function. Now I will teach you power of accommodation. Now what is power of accommodation? Okay, or first I will teach you how I observe the object या फिर vision possible कैसे होता है through eye. Fine. So next topic is how is vision or the working of the eye. Fine. Very simple. अगर यहाँ पे object है, I'm just making the object student. Fine. ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, फाइन, कोई बंदा खड़ा है और आपको देखना है इसे. फाइन. तो फर्स्ट इसके ऊपर लाइट फॉल होगा, लाइट रे भी फॉल. फाइन. फिर इसके ऊपर जितने भी लाइट रेज फॉल होंगे, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग. फाइन. लाइट रेज का प्रोसेस एंड इस चैप्टर में भी आगे आप पढ़ोगे. फाइन. अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे फॉल होगा एंड इसके बॉडी के थ्रू मैक्सिमम लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा. The reflecting light rays passes first through cornea. पहले किसके थ्रू पास होगा? Cornea. Fine. Then it will pass through aqueous humor. Fine. Then it will pass through pupil. From pupil it will fall on the lens. Fine. अब ऑब्जेक्ट दूर है कि पास है, दिन है कि रात है. Fine. इस हिसाब से लेंस लाइट रेज को एडजस्ट करेगा. फाइन. अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट पास है कि दूर है या दिन है कि रात है उसके हिसाब से. फाइन. द लेंस विल एडजस्ट द लाइट रेज. अब ये लाइट रेज जितना अंदर जरूरत होगी ये लेंस उसको एडजस्ट करेगा. अब वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट पास होता है तो हाउ द लेंस एडजस्ट इटसेल्फ एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे हाउ द लेंस एडजस्ट इटसेल्फ बाद में. अभी मैं सिर्फ नॉर्मल फंक्शनिंग आपको बता रही हूँ. फाइन.
लाइट रेज पासेस थ्रू प्यूपिल्स एंड फॉल ऑन रेटिना। फाइन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑपोजिट फॉर्म होता है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट रेटिना के ऊपर एक स्पॉट होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। फिर यहां से मैसेज जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में, ब्रेन में मैसेज जाता है एंड प्रॉपर इमेज इज फॉर्म्ड and then again the light reflects back and you see the object upright. Fine, so remember one thing, retina पे जो भी object form होता है वो inverted form होता है. Fine, so this is the working of your eye. Next we are going to study power of accommodation. Now what is power of accommodation? I will just write down the topic, power of accommodation. ना मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर फाइन कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपने आप को एकोमोडेट करता है टू हैव अ प्रॉपर एंड क्लियर विजन? फाइन, वेरी गुड, इट्स लेंस. जो भी आपने सोचा वो करेक्ट है. लेंस की वजह से ही हमें प्रॉपर क्लियर विजन मिलता है. फाइन, सो यहाँ पे किसको एकोमोडेट करना होता है? लेंस को. सो वेरी सिंपल, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? इट्स अ एबिलिटी of eye lens to adjust focal length is called as power of accommodation. Fine. Now student, if you observe the eye, सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? लेंस. लेंस अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो वी हैव अ प्रॉब्लम इन विजन. So power of accommodation is also dealt by the lens, and how it deal it? By adjusting itself. वो अपने आप को adjust ही क्यों करता है? To adjust the focal length. Now what is the meaning of focal length? Just like resolution power in your camera. आप जब भी कोई फोटो देखते हो तो बोलते हो ना resolution power अच्छा है, low है, etc. etc. Fine. Same way in our case, the lens maintain the resolution power by adjusting the length. Fine, length of what? To see the object clearly. Fine, accordingly, and this is called as focal length. Fine, in short ये याद रखना, resolution power. Okay, now we'll see what happens to the parts of the eye when we see the nearer object or we see the distant object. तो दोनों का हम distinguish पढ़ते हैं. Fine. Now speaking about first distant object. Distant object मतलब object जब दूर होते हैं तो हमारी आंखों के साथ क्या क्या होता है? Fine. And जो इसके साथ होता है, जो इस चीज के लिए होता है, everything will be opposite in case of nearer object. Nearer object means closer object. Fine. So whatever I will teach you in distance object, nearer object या closer object का वो opposite होगा. Fine. So over here it will be nearer object. Fine, or closer object. Now I am starting with the distance object. सबसे पहले try to recollect, कोरोइड एक्सटेंड होके क्या फॉर्म हुआ था? सीलियरी मसल्स. सीलियरी मसल्स एक्सटेंड होके क्या फॉर्म हुआ था? आइरिस. आइरिस एक्सटेंड होके क्या फॉर्म हुआ था? प्यूपिल. बट हम लोग वो पार्ट नहीं देखेंगे, हम थोड़ा नीचे वाला पार्ट देखेंगे. कोरोइड एक्सटेंड होके सीलियरी मसल्स फॉर्म हुए थे. सीलियरी मसल्स थोड़ा सा नीचे आके सस्पेंसरी लिगामेंट फॉर्म किया था, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ सीलियरी मसल. तो आपके सिलेबस में उन लोगों ने सस्पेंसरी लिगामेंट को भी सीलियरी मसल्स ही कंसिडर किया हुआ है, बिकॉज इट्स अ ब्रांच ऑफ सीलियरी मसल एंड देन इट इज होल्डिंग द लेंस एट इट्स पोजीशन. So we'll start, the process of vision will start from ciliary muscle. So in case of distance object, ciliary muscle relax. Ciliary muscles के साथ क्या होता है? It relaxes. So it relax. When ciliary muscles relax, second what happens on the lens? The curvature of the lens. Curvature मतलब the bulginess. Right? The curvature of lens decreases. When the curvature of the lens decreases, lens पतला होगा कि जाड़ा होगा? डेफिनेटली कर्वेचर अगर ऐसा है तो लेंस पतला, कर्वेचर अगर ऐसा है तो लेंस जाड़ा होगा. सो कर्वेचर ऐसा है, fine, this is a curvature. So definitely the lens appear thin or lens become thin. And when lens become thin, the focal length increases, the resolution power increases.
When focal length increases, the object at the distance is seen properly. तो ये 4 सीक्वेंस में याद रखना है, नियरर ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट होगा. फाइन. अगेन आई एम रिपीटिंग, सीलियरी मसल्स रिलैक्सेस, कर्वेचर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, लेंस बिकम थिन एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. अब क्वेश्चन अराइजेस, द मैक्सिमम डिस्टेंस टिल विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. फाइन. It is called as far point of the eye. It is called as far point of eye. Fine. And it is infinity. Again I am repeating. Maximum distance कहाँ तक हमारी आंखें ऑब्जेक्ट देख सकती है. Fine. उसका कोई लेंथ नहीं है स्टूडेंट, इन्फिनिटी तक हमारी आंखें ऑब्जेक्ट देख सकती है. That's why you can see star in the sky. Fine. इसके लिए यहाँ पे जो लेंथ आएगा वो इन्फिनिटी होगा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए. एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिकली फार पॉइंट ऑफ द आई. इंग्लिश में से कैसे लिखना है, द मैक्सिमम पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बाय द आई इज कॉल्ड एज फार पॉइंट ऑफ द आई एंड द डिस्टेंस इज इन्फिनिटी. फाइन. अब आते हैं नियरर ऑब्जेक्ट के बारे में. नियरर ऑब्जेक्ट में सीलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे रिलैक्स होता है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट. When ciliary muscles contract, एक बार फिर से मैं पिक्चर आपको दिखा दूं. When ciliary muscle contract, तो what happens, यहाँ पे ciliary muscle contract होगा, मतलब ये और सब ऐसे मतलब contract होगा, पास आएंगे. तो यहाँ से अगर ये और पास आ रहा है, नीचे साइड दोनों साइड से दोनों पास आ रहे हैं, तो लेंस क्या होगा, थिक हो जाएगा. फाइन. It means the curvature of the lens will increase. Curvature increase. Lens will become thick. Focal length decreases. Fine. Now, the minimum distance at which the object can be seen clearly. For example, if this is a pen I am holding and I want to see this pen very clearly, at what distance I should hold it? मतलब किस डिस्टेंस पे मुझे इसको होल्ड करना चाहिए सो दैट इसके इच एंड एवरी पार्ट मुझे क्लियरली दिखाई दे. क्या इतना पास देखना चाहिए? नहीं. द ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लर और यू विल हैव अ स्ट्रेन ऑन योर आई. So very simple, the minimum distance at which you can see the object very clearly without any strain on your eye or without any problem facing on your eye, then it is called as nearer distance or it is called as near point of the eye. Fifth point is near point of the eye. Now near point of eye is 25 centimeter. फाइन. अब 25 सेंटीमीटर से और पास लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट क्लियर भी नहीं, ब्लर दिखेगा एंड आपकी आंखों पे स्ट्रेन होगा. फाइन. सो वेरी सिंपल, आपके टेक्स्ट बुक में 2 पैराग्राफ के कंटेंट में यही लिखा हुआ है. एंड दिस इज हाउ द सीक्वेंस इज मेंटेन फॉर द प्रॉपर विजन वेदर इट्स अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इट इज अ नियरर ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द process of how the object or vision, you can say process of vision. Now we are going to study the defects. You have 3 major defects to discuss in your syllabus. First one is myopia, second one is hypermetropia and the third one is presbyopia. Hypermetropia is also called as hyperopia. Right? So let's see first myopia. Fine. मायोपिया, अगर आपको मायोपिया समझ में आ जाता है स्टूडेंट तो हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइप्रोपिया उसका ऑपोजिट है. Now over here you can see the diagram of myopia. Fine. Okay. First of all, what is the meaning of myopia? Myopia means short sightedness. इसका है short sightedness. Fine. Now what is the meaning of short sightedness? मतलब near object हमें दिखता है, far object हमें नहीं दिखता है. Fine. Again I am repeating, myopia is nothing but short sightedness. Sight means vision. Fine. Okay. Short sightedness मतलब पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है. Fine. अब मीनिंग समझ में आ गया. अब क्वेश्चन अराइजेस, दूर की चीजें दिखती क्यों नहीं है? फाइन. मायोपिया पेशेंट को दूर की चीजें दिखती क्यों नहीं है? दूर की चीजें इसलिए नहीं दिखाई देती कि इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस रेड कलर डॉट इज अ ऑब्जेक्ट का पिक्चर. इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग ऑन रेटिना, दिस इज रेटिना, ये ब्लैक कलर का जो ये है ना ये रेटिना है. फाइन. इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग ऑन रेटिना, रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाता है. फाइन. अब आप सोचोगे कि ये 2 डायग्राम क्यों दिया है. पहला वाला डायग्राम ये बता रहा है द इंफिनिटी पॉइंट. इंफिनिटी पॉइंट मतलब
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, एंड मायोपिया का प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, दूर के ऑब्जेक्ट का। इंफिनिटी पॉइंट उसका यहां पे होना चाहिए, आई एम सर्कलिंग दिस, इंफिनिटी पॉइंट यहां पे होना चाहिए, बट वो इंफिनिटी पॉइंट पहुंचने से पहले ही समवेयर इन द बिटवीन ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। Now the reason behind that, fine, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, कर्वेचर रिड्यूस होना चाहिए, लेंस थिन होना चाहिए, बट यहाँ पे वो उतना थिन नहीं हो पाता है, लेंस का प्रॉब्लम होता है। लेंस कैन नॉट डिक्रीज इट्स कर्वेचर आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट। तो जो नॉर्मल साइट में मैंने आपको डिस्टेंस एंड नियर ऑब्जेक्ट का पढ़ाया ना, वहां पे लेंस का जो प्रॉब्लम होता है वही यहाँ पे होता है। तो अगर लेंस का प्रॉब्लम है, सो वी यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज टू क्योर दिस डिफेक्ट। So in case of myopia, we use biconcave lens. Which lens we use? Biconcave lens. Now biconcave lens in the specs helps in arranging all the light rays passing through it in such a way that the object image is formed at the infinity point. So इतना ही याद रखना स्टूडेंट। पहले तो myopia की मीनिंग, दूसरा वो होता क्यों है, एंड तीसरा क्या उसका सोल्यूशन है। So first, myopia is a short sightedness, means near object can be seen, far object cannot be seen. Now the reason behind that, far object is not found on the infinity point. जो हमारे रेटिना पे इंफिनिटी पॉइंट होता है उसके ऊपर फॉर्म नहीं होता है, इंफिनिटी पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही बीच में कहीं फॉर्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है, लेंस ज्यादा थिन नहीं हो पाता है, द कर्वेचर कैन नॉट बी रिड्यूस एट अप्रोप्रिएट, आई मीन अप्रोप्रिएट थिकनेस उसका मेंटेन नहीं कर, थिननेस नहीं मेंटेन कर पाता है, एंड दैट इज व्हाई द इमेज इज फॉर्म अर्लियर। एंड लेंस की डिफेक्ट की वजह से वी यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस, दैट इज बाइकॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस वी यूज टू मेंटेन दिस इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ मायोपिया। अब ऑपोजिट होगा किसके अंदर, हाइपरमेट्रोपिया और हाइप्रोपिया। फाइन, हाइप्रोपिया में स्टूडेंट क्या होता है, इन केस ऑफ हाइप्रोपिया यू कैन सी ओवर हियर, फाइन, हाइप्रोपिया में नियरर ऑब्जेक्ट, नियरर ऑब्जेक्ट मतलब 25 सेंटीमीटर, फाइन, sorry, hypermetropia, over here they have mentioned hypermetropia. Hypermetropia का पहले मीनिंग तीन पार्ट में हम पढ़ेंगे, and what are those three parts student? First meaning, the reason and which lens is used. So hypermetropia, which is also called as long sightedness. Now what is the meaning of long sightedness? It means distance object can be seen but the nearer object cannot be seen. Fine. अब क्यों नहीं दिखता है, अब आते हैं अगेन पिक्चर की तरफ। This is the nearer point for the object to be formed. मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए if the object is brought closer. Fine. आप यहाँ पे ध्यान से ये भी देख सकते हो, यहाँ पे लेंस बल्जिंग दिखाया है, प्रॉपर बल्जिंग लेंस होगा मतलब कर्वेचर ऑफ द लेंस इज इंक्रीज्ड। फाइन, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए इन केस ऑफ नियरर ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर, बट इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट, अब यहाँ पे जब लेके आते हैं हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के पास, इंस्टेड ऑफ द इमेज फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट इट फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के बाहर चला जाता है। फाइन, वो रेटिना के बाहर क्यों चलाता है, बिकॉज द बल्जिंग इज मोर, फाइन, ज्यादा बल्ज हो जाता है ये, और यू कैन से द कर्वेचर इज इंक्रीज एक्सेसिवली, तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। एंड आप सबको पता है रेटिना पे अगर इमेज फॉर्म नहीं होगा, ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लर, फाइन, एंड इट इज क्योर्ड। अभी यहाँ पे डिफेक्ट किसका है, लेंस का, तो हम कौन सा लेंस यहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, टू cure or find the solution for this problem. And the convex lens looks like this. It adjusts the light rays passing through it, जो आपको previous chapter में पढ़ा दिया है, and then the image is properly formed at the point and we can see the object. Fine. Next and the last one is the last which we have to study defect is presbyopia. Fine. Now what is presbyopia? Presbyopia is nothing but hyperopia. Fine, hyperopia or hypermetropia. In your syllabus they have used hypermetropia. Fine.
बट कंडीशन अप्लाई, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाया था, तो ये फिर से नया क्यों है, इसको प्रेसबायोपिया क्यों बोलते हैं? कंडीशन अप्लाई ओवर ईयर, ये ओल्ड एज में होता है। फाइन, आपने देखा होगा कि जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, आई मीन क्रॉस 60-65 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत पास में ले जाके थोड़ा सा चश्मा नीचे करके वो देखते हैं। फाइन, न्यूज़पेपर भी उनको पढ़ना होता है तो काफी पास में ले जाके वो पढ़ते हैं, थोड़ा सा चश्मा नीचे। और चश्मा क्यों नीचे करते हैं? टू एडजस्ट दैट लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। फाइन, एंड ये ओल्ड एज में मोस्ट ऑफ 99.9% लोगों को हो जाता है। फाइन, इट्स अ नेचुरल थिंग। फाइन, लेंस का थोड़ा फंक्शनिंग वीक हो जाता है एंड नियरर ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाता उनको, क्योंकि बल्जिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इफ यू सी एनी ओल्ड पीपल, उनके जो लेंस होंगे ना बहुत थिक वाले होते हैं। जो चश्मा भी पहनते हैं ना बूढ़े लोग, अगर आप देखोगे वो ओल्ड, आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देख लेना, उनको अगर आप देखोगे चश्मे जो है वो थिक है, बहुत मोटे मोटे चश्मे होते हैं। वाई? बिकॉज द लेंस इज थिकर ओवर देयर। बल्जिंग लेंस वी नीड, yes, convex lens we need, so that is the example, good example for which you can observe it. Now the later part of the chapter will be continued by Salman sir, my colleague.